Hello friends, welcome to Bazme Godda. I am Mohammad Mahmood Faruqi and I am a medical student from the JNMC second year. So I am here to teach about the biology classes due to the lockdown. आइए देखते हैं biology. So biology क्या है? The biology comes from the two word. First, एक है bio, that means the life, जीवन, and second thing the logi, that comes from the term the logos. The logos means to study. So अगर हम इसको definition बनाएं, so the biology simply means, आसान भाषा में अगर इसको समझें तो it is the study of the life. Biology is simply the study of life. अगर हम इस डिफिनेशन को 6th क्लास से 12th क्लास में प्लेस कर दें तो इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड हो जाते हैं द डिफिनेशन ऑफ द बायोलॉजी एंड दैट सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स आर इट्स लाइफ प्रोसेसेस, morphological distribution, morphology, plant anatomy or the anatomy of the organism. The most important thing that has been recently added to the biology is that its development and evolution. अभी सबसे लेटेस्ट जो बायोलॉजी में ऐड किया गया है वो डेवलपमेंट एंड इवोल्यूशन है और रिसेंटली जो भी स्टडीज की जा रही है वो डेवलपमेंट एंड इवोल्यूशन के ही बेसिस पे की जा रही है. And now the next topic we will start is that living and non-living things. As we know, the scientist has determined the living and non-living thing on the basis of certain characteristics. And those characteristics are as follows. जो भी characteristics साइंटिस्ट ने बताई है लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंशिएट करने के लिए वो ये है. फर्स्ट थिंग इज द ग्रोथ, द सेकेंड थिंग इज रिप्रोडक्शन, up to 6th class these two characteristics can be considered, but when we move to 11th, 12th and NEET, the two other important characteristics also gets added, and those two characteristics are metabolism and consciousness. So अगर ग्रोथ से स्टार्ट करें, up to the level of the class 6, growth or reproduction can be called as the property of the living organism, but now the scientist has classified the growth and reproduction that alone it cannot determine the living state. Means अगर सिर्फ ग्रोथ की बात करें तो ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन नहीं कर सकता है. क्यों नहीं कर सकता है? Because the scientist had told that substances like boulders, mountains, पहाड़, बोल्डर्स जो कि नॉन लिविंग वस्तु है वो भी अगर 1000 साल या 10,000 साल तक वो अपने स्थान पर पड़े रहे तो वो भी बढ़ने लगते हैं. बिकॉज द ग्रोथ जो साइंटिस्ट ने नापा है इन टर्म्स ऑफ इट्स मास एंड नंबर. Therefore, growth alone now cannot be determined as the characteristics of the living organism. Second property जो साइंटिस्ट ने बताया है that is the reproduction. So, as we all know, हम लोग सब जानते हैं कि reproduction एक important property है कोई भी जीवित वस्तु का. लेकिन कुछ जीवित वस्तु है जो या ऑर्गेनिज्म है जो जीवित तो है लेकिन
रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल म्यूल, स्ट्राइल बी, स्ट्राइल ह्यूमन, these three are very much important example which are living but they do not reproduce. What is mule? Scientist ने female horse and male donkey के फ्यूजन से म्यूल बनाया और ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. Therefore now the scientist has considered that the reproduction cannot be characterized as a important characteristic for the living state. Second thing is the style B. हम लोग जैसा कि सब जानते हैं बी में जो मधुमक्खी है उसमें उसके छत्ते में तीन कैटेगरी के लोग होते हैं. जैसे फर्स्ट क्वीन जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, सेकंड मेल बी जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, एंड थर्ड थिंग ऑल द वर्कर काम करने वाले जो शहद लाते हैं ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं. देयरफॉर वो जिंदा तो है लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं. देयरफॉर साइंटिस्ट हैज कंसीडर्ड according to all the three bases that reproduction cannot be considered as the characteristic of living being. Now come to the third property, the metabolism. What actually metabolism is? मेटाबॉलिज्म है क्या? हमारे शरीर में जो भी केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, जब हम खाते हैं, जब हम सांस लेते हैं, तो जो भी केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं दैट इज कॉल्ड द मेटाबॉलिज्म. अगर हम इसको डिफाइन करें, द मेटाबॉलिज्म इज डिफाइंड एज सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस. जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं सबको अगर मिला दिया जाए, सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस इंक्लूडिंग कैटाबॉलिज्म and anabolism. Now कैटाबॉलिज्म क्या है and एनाबॉलिज्म क्या है? कैटाबॉलिज्म जो भी चीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपलर सब्सटेंस में टूट के बन रही है, जैसे हमने कोई खाना खाया तो वो टूटती है, दैट इज द कैटाबॉलिज्म. हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन चलते रहते हैं, पाचन क्रिया चलती रहती है, दैट इज द डाइजेस्टिव प्रोसेस. वो सारी चीजें कैटाबॉलिज्म में आती है. और एनाबॉलिज्म जो भी चीज सिंपलर सब्सटेंस से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में जाती है, जैसे प्लांट जो खाना बनाती है अपना, एंड दैट इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस, दैट इज द एनाबॉलिज्म. तो जो भी बनने की प्रक्रिया है और जो भी टूटने की क्रिया है, सारे को मिला के दैट इज कॉल्ड द मेटाबॉलिज्म. नाउ द साइंटिस्ट हैज टोल्ड, जैसा कि साइंसदानों ने कहा है कि मेटाबॉलिज्म इज अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग स्टेट. ये कोई भी नॉन लिविंग स्टेट में प्रेजेंट नहीं रहेगा. दैट मीन्स मेटाबॉलिज्म इज इटसेल्फ a unique state of living being. चौथा प्रॉपर्टी, फोर्थ वन, इज द कॉन्शियसनेस. जागरूक होना. What is consciousness? As we all know from a single plant, एक प्लांट से लेकर एनिमल तक हर ऑर्गेनिज्म कॉन्शियस होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर प्लांट की बात की जाए, when the sunlight falls on the plant, they move in the direction of sunlight. जब भी सन की किरणें प्लांट की तरफ आती हैं तो प्लांट उसकी तरफ बढ़ता है, मतलब ग्रो होता है. दैट इज द कॉन्शियसनेस. वो टेम्परेचर को लेके कॉन्शियस होता है, वो वाटर को लेके कॉन्शियस होता है. बहुत सारे प्लांट है जहां पानी देखते हैं उधर ग्रोथ करते हैं, and they are conscious with the weather. So consciousness also along with the metabolism is a unique property of living organism. Now some important question to those who are at the higher classes, like self consciousness. Self consciousness is only unique property of the human being. खुद के बारे में कॉन्शियस
कॉन्शियस होना, सेल्फ कॉन्शियसनेस इज अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये कोई और जीवित वस्तु में प्रेजेंट नहीं है। सो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप नोट कर सकते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस। थैंक यू।